Like around us there is like a epidemic, like a, in a way not epidemic, pandemic, like of a virus. और हम जानते हैं कि हमारे बीच में जो पैंडेमिक चल रहा है, And we are hearing this news about this locust is entering our country. और हम सुन रहे हैं कि टिड्डियाँ जो हमारे देश में आ रही है, And it's making a lot of destruction in the farm sector. और जैसे खेतों में बहुत ही नाश कर रही है वो, And can affect can affect our country in the future. और भविष्य में हमारे देश को भारी नुकसान हो सकता है. And they are saying that it's even entered Bombay. और कोई लोग बोल रहे हैं कि मुंबई में भी उन्होंने तो आ गए हैं. Yeah, it's a crazy time. और बहुत ही विचित्र समय. But believers like have a hope. लेकिन विश्वासी के पास एक आशा है. I was thinking about. I was reading this portion in the morning, Deuteronomy chapter 4. और व्यवस्था विवरण 4 को आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था, The people of Israel is on the banks of that river Jordan. और इज़राइल के लोग ये यर्दन नदी के किनारे पे खड़े थे. And after, like if you cross the Jordan river, there is a promised land. और यर्दन को पार करते ही जो वायदे का देश था, There is a promised land. वायदे का देश. 400 years before, God has promised to Abraham. और जो 400 साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था. And now these people, this a new generation which came from the Egypt, like now the new generation is ready to take it. और जो नई पीढ़ी अभी मिस्र देश से आने के बाद आई थी, अभी वो उसको जीतने के लिए तैयार थी. They can see the giant fort. और वो देख सकते थे बड़े बड़े जैसे कि किले. Skilled like enemy soldiers. और जो शत्रु के जो सेना है बहुत ही निपुण ऐसे. Giants like a huge guys, huge like people. और ऐसे बहुत ही बलवंत और बड़े लोग. And now God is saying, I have given this land. और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें ये जमीन दी है. But before that, God is giving the people a warning. लेकिन उसके पहले परमेश्वर इन लोगों को एक चेतावनी देता है. So I just wanted to. There are 3-4 warnings in this Bible in this chapter. तो इस अध्याय में ऐसे 3-4 चेतावनियां हैं. And chapter 4 verse 9 of Deuteronomy. और व्यवस्था विवरण का 4 का 9. Only take heed to yourself, diligently keep yourself, lest you forget the things your eyes have seen, lest they depart from your heart all the days of your life. Teach them to your children and your grandchildren. यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो. कहीं ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना. So he says that you have saw something. ये कहता है कि तुमने कुछ देखा है, Don't forget it. तो उसे भूलना मत. When your eyes is connected, like we have a physical eye. और जैसे कि हमारी शारीरिक जो आंखें हैं. And when you see an object that the process it happens, like it sends signals to the brain. और कुछ चीजों को जैसे हम देखते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क को जैसे कुछ चेतना भेजता है, संदेश भेजता है. And then it interpret, okay, this is a table or this is a book. तो वो जैसे कि वो उसको स्पष्टीकरण कहता है कि ये टेबल है, ये किताब है. But here it says that your eyes have seen something. लेकिन यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारी आंखों ने कुछ देखा है. What are those things they saw? ऐसी कौन सी चीजें थी जो उन्होंने देखी? They saw the glory of God. उन्होंने परमेश्वर की महिमा देखी. They saw the manna. और उन्होंने मन्ना को देखा. They saw the quail, the bird. और जो पंछी आए थे उनको देखा. They saw the Red Sea parted. और उन्होंने देखा कि लाल समुद्र दोभागा हुआ. Right? They saw like how God is defeating the enemies. और उन्होंने देखा कि परमेश्वर शत्रुओं को कैसे हरा रहा है. But it's very easy. We can easily forget. लेकिन बहुत आसान है कि बहुत आसानी से हम भूल जाते हैं. Like this people has done that. और इन लोगों ने यही किया था. God is the one who knows our heart so clearly, so specifically. और परमेश्वर ये है जो हमारे हृदय को बिल्कुल साफ साफ और बिल्कुल सटीक तरीके से जानता है. Your spouse don't know.
और हमारे पति या पत्नी नहीं जानते, your parents may not know you, हमारे माता पिता शायद नहीं your जानते, friends, the closest, the best friend may not know. आपके सबसे अच्छे खासे बहुत ही करीबी दोस्त भी नहीं जानते। Christ knows your heart. और यीशु मसीह ही परमेश्वर है जो हमारे हृदय को जानता He है, knows our heart. हमारे हृदयों को जानता है। But she is saying a caution, a warning. और इसीलिए वो ये चेतावनी देता है। And it says verse 10. और वचन 10 में वो What कहता are है they? What they saw? कि उन्होंने क्या देखा था। He says, especially you stood before me at the Mount Horeb. विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास मेरे सामने खड़े थे, Where God has given them commandment. जहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी थी। It was a spectacular sight. और वो देखने के लिए बिल्कुल ही अवर्णनीय ऐसा But चित्र it था, also it was a fearsome sight. लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही डरावना चित्र था। God says that, परमेश्वर कहता है don't forget. उसे भूलना मत, Your eyes haven't seen that. और तुम्हारी आंखों ने उसे देखा है, Let it be in your heart. तो तुम्हारे हृदय में उसे रहने दो। God has done in our lives many things. परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें की है। Jesus did not come to make bad people good. और यीशु मसीह बुरे लोगों को अच्छा करने के लिए नहीं आया, He came to make dead people alive. लेकिन वो मरे हुओं को जिंदा करने के लिए आया। We were dead. हम मरे हुए थे We didn't have any purpose. और हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं था, We were but God has given a new purpose. लेकिन परमेश्वर ने हमें नया उद्देश्य दिया। Like when we get up in the morning, we know we have a purpose. और हम जब सुबह उठते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा कुछ उद्देश्य है। But also one more thing, He says that teach your children. लेकिन एक और चीज वो बताता है कि अपने बच्चों को सिखाना। If I forget, अगर मैं भूल जाऊं then it affects me. तो वो मुझ में उसका परिणाम होता It है, also affects the generation which is following me. लेकिन मेरे बाद जो पीढ़ी आती है उस पर भी उसका परिणाम होता है। Today morning I was watching our Wednesdays a service from Baltimore. और बॉल्टिमोर से जो बुधवार की सभा जिसे मैं देख रहा था, And after the service, they had a panel of people who were sitting in the rap session. और रैप सेशन में कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे। And there was one lady called Colleen, कॉलिन करके एक महिला थी, and Pastor Shalom was there. पास्टर शालर थे, And that lady said, और वो महिला ने कहा, a majority of the Christian families और खास करके जो मसीही परिवारों को अगर देखे and their children became Christians और or उनके follow their parents' faith, और अगर उनके बच्चे जो उनके माता पिता के विश्वास को ही लेके आगे बढ़ते हैं तो, and there is a survey happened. और ऐसे किसी ने उसका सर्वे किया, उसका पढ़ाई की। It is not necessary all Christian families, their children also follow the faith. और ऐसे नहीं होता है कि सारे मसीही परिवारों के बच्चे भी उसी विश्वास के पीछे चलते हैं। But they conducted the survey, जब उन्होंने पढ़ाई की तो, and those children who follow their parents' faith, और वो बच्चे जो अपने माता पिता का विश्वास लेके चलते हैं, they found one common thing in that family. तो उस परिवार में एक चीज उन्होंने समानता में देखी Their parents in the morning love to read the Bible. कि उनके माता पिता सुबह उठकर बाइबल पढ़ना बहुत पसंद करते थे। That scene has caught their attention in the children. और जो उन्होंने देखा, वो जो चित्र था वो उन बच्चों को जैसे आकर्षित किया। My parents or my dad, my mom love the Bible. मेरे माता पिता या फिर मेरे मम्मी या पापा ये बाइबल से बहुत प्रेम करते हैं। Just not a reading in a religious way, और एक धार्मिक विधि के जैसे लेकर हम पढ़ते नहीं but हैं, having a real thirst for the word. लेकिन सच में इस वचन के लिए एक सच्ची प्यास। We can give our children the best gadgets or bicycle or best things. और हम हमारे बच्चों को ऐसे बहुत सारे उपकरणों को दे सकते हैं, साइकिल को दे सकते हैं, बहुत अच्छी चीजों को दे सकते हैं, But one important thing, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है remember their lifetime. जो उनके जीवन में उन्होंने याद करनी चाहिए, That is our faith, वो है हमारा विश्वास, following the Lord. परमेश्वर के पीछे चलना, That changed them. और वो उन्हें बदलता I है, think that's an important in our lives. और वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। In your life, you make faith a decision. और आप
अपने जीवन में विश्वास के निर्णय लेते हो like we make faith decisions. और विश्वास के ऊपर आधारित आप निर्णय लेते हो, Right, when our first child Amy was only 8 months old, we moved to Pune, हमारी पहली बेटी एमी जब सिर्फ 8 महीने की थी तो हम पूना में गए and then we came back from there after 3 years. The second child, she was around 1 year old. और जब हमारी दूसरी बच्ची 1 साल की थी तब हम पुणे से यहाँ पर आए And children maybe they get to know these things, और शायद बच्चों को ये चीजें पता चलती है why they're doing this. ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, House after house, place after places. घर बदल रहे हैं, जगह जहाँ बदलती जा रही है, One thing is that लेकिन एक चीज है faith. विश्वास, We are following the Lord. हम परमेश्वर के पीछे चल So रहे our हैं। eyes have seen what the Lord has done, तो हमारे आँखों ने देखा है जो परमेश्वर ने किया है and we remember it, और हम उसे याद रखते हैं lest our heart forget it. कि हमारा हृदय उसे ना भूले। Proverbs 4:23. और नीति वचन 4:23, Keep your heart, और अपने हृदय की सुरक्षा कर, guard your heart, उसको सुरक्षित रख, because out of that comes the issues of life. क्योंकि उसके द्वारा ही जीवन की नदियाँ बहती So if हैं। you read in the same chapter, verse 15, और उसी अध्याय का अगर 15वां अगर वचन अगर आप verse पढ़े 19, और 19वां वचन पढ़े verse 23, और वचन 23 पढ़े, all these verses talks about take heed. और ये तीनों ही वचन रक्षा करने के लिए सुरक्षा की बात करते हैं। Take heed, ध्यान में रखो, be careful, ध्यान रखो, be careful. ध्यान में रखो। Let's follow God. तो आइए परमेश्वर के पीछे चले Let's follow the faith of godly men. और जो विश्वासी लोग थे उनके विश्वास के पीछे चले। Just like Pastor Carl just passed away like few days back, और कुछ दिन पहले पास्टर कार्ल गुजर गए, but he has given us a heritage, और उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा हेरिटेज रखा Word है, of God, परमेश्वर का वचन vision. और उनका दर्शन। It's like Moses is standing at the banks of the Jordan River. और सोचिए जैसे मूसा उस यर्दन के किनारे पे खड़ा है See, that's the land. और कहता है कि देखो वो देश है, But don't forget लेकिन भूलना नहीं what your eyes have seen. तुम्हारी आंखों ने जो देखा है। Let's not forget. आइए मत भूले, Let's remember the works God has done in our lives. और परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में काम किए हैं उसे याद करें। Man, God bless this. परमेश्वर इसे आशीष दे। Thank you. थैंक यू। Amen. आमीन।